کیوں نہ عقیدت تجھ سے کرے غم جب کہ ہم کو تجھ سے ملے، جب کہ ہم کو تجھ سے ملے، اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ اظہر علی دیوبندی صاحب بات کر رہے ہیں؟ میں جسیم اختر بول رہا ہوں، آپ فری ہیں نا ابھی؟ دیکھیے، ہاں جی اظہر علی صاحب، یہ دیکھیے اللہ رب العزت سچا ہے، اس کو جو جھوٹا کہے ہم اس کو اسلام نہیں مانتے ہیں، مسلمان نہیں مانتے، سمجھے؟ بالکل بالکل۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان بھی موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچا کون؟ اللہ کا کلام ہر سچا رہتا ہے، اللہ سچا ہے، اس کو جھوٹا کہنے والا کافر ہے۔ یہی فتویٰ بھی موجود ہے المحند علی المفند میں، صفحہ نمبر 62-63 میں، 24واں سوال کے جواب میں، کہ لکھتے ہیں کیا فرماتے تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ حق تعالیٰ کے کسی کلام میں وقوع کذب ممکن ہے یا کیا بات ہے؟ جواب لکھا ہوا ہے، ہم اور ہمارے مشائخ اس کا یقین رکھتے ہیں کہ جو کلام بھی حق تعالیٰ سے صادر ہوا یا آئندہ ہوگا وہ یقیناً اور بلا شبہ واقعی کے مطابق ہے، اور اس کے کسی کلام میں کذب کا شائبہ اور خلاف کا واہمہ بالکل نہیں، اور جو اس کے خلاف عقیدہ رکھے یا اس کے کسی کلام میں کذب کا وہم کرے وہ کافر ملحد زندیق ہے، اس میں ایمان کا شائبہ بھی نہیں۔ المحند علی المفند یعنی عقائد علماء اہل دیوبند کا یہ عقائد ہے جو 62 اور 63 میں لکھے ہوئے ہیں۔ ٹھیک جناب اظہر اور ایک کتاب دیکھیے سیف یمانی میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کے ہم تائید کرتے ہیں، یہ عقیدہ جو صحیح ہے سیف یمانی میں بھی لکھا ہوا ہے، صفحہ نمبر 88 میں منظور نعمانی دیوبندی صاحب لکھتے ہیں حق تعالیٰ کی نسبت یوں نہیں کہہ سکتے کہ وہ ظلم اور صفاحت اور کذب پر قادر ہے، کیونکہ محال قدرت کے تحت میں داخل نہیں ہوتا، یعنی وہ اس قابل نہیں کہ قدرت اس سے متعلق ہو، اور معتزلہ کے نزدیک ان افعال مذکورہ پر یعنی جو اللہ تبارک و تعالیٰ تحت قدرت داخل ہے کہنا، ان افعال مذکورہ پر حق تعالیٰ قادر تو ہے، کہتا ہے قادر تو ہے مگر کرے گا نہیں۔ کون کہتا ہے؟ یہ معتزلہ کا عقیدہ ہے، یہ بتائیں۔ منظور نعمانی دیوبندی صاحب سیف یمانی صفحہ نمبر 28 میں لکھے ہیں اس کو، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ برا کام کر سکتا ہے، جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کیا کس کا عقیدہ ہے کہہ کے بتائے؟ منظور نعمانی صاحب کا۔ منظور نعمانی صاحب بتائے معتزلہ کا عقیدہ ہے وہ، جی معتزلہ عقیدہ یہ چیز بتائے۔ لیکن دوسری کتاب میں دیکھتا ہوں، دیکھے گا تالیفات رشیدیہ صفحہ نمبر 99 میں، اور یہ لکھے ہوئے فتاوی رشیدیہ میں بھی دیکھیے گا، دیوبندی عقیدہ یعنی رشید احمد گنگوہی صاحب لکھتے ہیں جھوٹ بولنا اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے، کثیر دلائل سے ثابت ہوتا ہے، لہذا امکان کذب ثابت ہوا، یعنی جھوٹ بولنا کیوں نہ ہو وہ علی کل شیء قدیر، تالیفات رشیدیہ صفحہ نمبر 99۔ یعنی گنگوہی جی نے مان لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جھوٹ بولتا تو نہیں پر بول سکتا ہے، کہہ کے وہی عقیدہ جو معتزلہ عقیدہ بتائے ہیں منظور نعمانی صاحب، وہی عقیدہ رشید احمد گنگوہی بیان کر رہے ہیں۔ جی وہاں پہ اس طریقے سے اچھی خاصی لمبی ہے، یہ بحث جو ہے اس کا اصل جو ہے نا، اس کا اصل نقطہ جو ہے یہ تو دیکھیے اظہر علی صاحب، یہ تو ہمارا عقیدہ کا معاملہ ہے، آپ کے گھر کا بھی میں تائید دکھایا جو ہم سپورٹ کرتے ہیں، بالکل ہم اس سے بالکل متفق ہیں، لیکن یہ رشید احمد گنگوہی صاحب جو کہے ہیں نا جی وہی جو ہے یہ اصل نقطہ ہے اس بحث کے خلاف، یعنی جو مولانا رشید احمد گنگوہی
फतवा रशीदिया के अंदर फतवा दिया है, या वहाँ पे इबारत है, तकरीबन 6 से 7 का इस इबारत है वो, इसमें तफसीलन इसको बयान किया गया। वो फतवा इसके रशीदिया अंदर वाला जो भी बता असल- देंगे। हाँ, उसके अंदर जो असल इबारत है इसका नुक्ता ये है कि भाई उनसे वही जो है अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर किसी को किसी जन्नती को जहन्नम में डालना चाहे, अल्लाह सुब्हानहू तआला उस पे भी कादिर है। अलबत्ता उसने वादा किया हुआ है कि सालिहीन को जन्नत देगा, और सालिहीन में सबसे ऊपर के लेवल के लोग कौन है? अंबिया है। ठीक है ना? ठीक बात है ना? जी जी जी। हाँ, तो अल्लाह का वादा है ना कि जो है अंबिया को जन्नत देगा और उनके मानने वाले को भी जन्नत देगा, उनके रास्ते पे चलने वाले को भी जन्नत देगा। लिहाजा इस बात से तो यानी ये जो बात मैं कह रहा हूँ कि अंबिया को और सालिहीन को अल्लाह जन्नत देगा, इसके बावजूद ये कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इस बात से कादिर है कि वो उनको यानी जन्नत ना दे और जहन्नम में डाल दे। ऐसी इस तरीके की बातें बरेलवी उलमा ने भी लिखी हुई। नहीं, खुल्फे वाइद की बातें अलग हैं, मैं सिर्फ इसमें बात कर रहा हूँ अभी, उसमें अभी बात करेंगे तो बात कीजिएगा। मैं तो यही कहता हूँ कि ये नुक्ता जो है, बहस का असल नुक्ता जो है ये यही है। अब वो कैसे है मैं आपको आगे बताऊंगा, लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो खुल्फे वईद का अकीदा है क्या ये दुरुस्त है? खुल्फे वईद के मामले में बात करूंगा इंशाअल्लाह अजीज, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत के वस्फ की बात हो रही है, झूठ की निस्बत, उसमें सिर्फ बात कर रहे हैं अभी। तो झूठ सबसे बड़ी ऐब है, समझे? कुरान में अल्लाह रब्बुल इज्जत झूठ को क्या कहा है? फलानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, तो झूठों पर लानत हो, यानी झूठे पर लानत हो। तो अल्लाह तबारक व तआला को अगर इस वस्फ से, इस बुरे वस्फ से जो झूठा है, झूठ चीज है, अल्लाह की तरफ निस्बत करना बहुत बड़ी ऐब है। और रही बात आपकी खुल्फे वईद के मामले में, है ना, खुल्फे वईद फरमाया अल्लाह रब्बुल इज्जत, इसके मामले में बात ये आएगी इंशाल्लाह तफसीलन इसमें, लेकिन अभी ये चीज सबसे बड़ी अहम मद्देनजर मसला है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के तरफ झूठ निस्बत करना, और तहते कुदरत बारी ताला में इस मसला को आयात और अहादीस कसीरा से ये मसला साबित है। फतवा रशीदिया में भी रशीद अहमद गंगोही फतवा दे रखे हैं, सफा नंबर 233 में भी देखिएगा, ये मिलेंगे। झूठ की निस्बत अल्लाह के तरफ नहीं करनी चाहिए। मैं अपनी बात को जो है हाशिया चढ़ा रहा हूँ, आप अगर इस बात को समझेंगे इंशाल्लाह आगे बात जो है क्लियर हो जाएगी। जी, बात सिर्फ इसको की है जी, क्या खुल्फे वईद का जो अकीदा है आप इसको दुरुस्त समझते हैं? नहीं, खुल्फे वईद के मामला को छोड़ दें, अभी सिर्फ झूठ के बारे में बात करें। नहीं, मौलाना देखिएगा, अगर ऐसा कहेंगे तो मैं कहूँगा कि झूठ के अल्फाज आप मुझे दिखा दें। नहीं है ना, किस्ब है, मैं दिखा रहा हूँ। तो आप फिर आप जो है उनसे वईद के बारे में बात कर रहे हो, अगर उनसे वईद की तालीम की जाए तो किसकी तरफ जाती है? खुल्फे वईद के बारे में वादा देखिएगा, इसमें आप जो पढ़ रहे हैं, मैं आपको समझ गया। फतवा रशीदिया में अल हासिल इम्कान किज़्ब से मुराद दुखूल किज़्ब तहते कुदरत बारी ताला है, यानी आगे लिख रहे हैं, ये झूठ के निस्बत कर दिए, फिर लिखे यानी अल्लाह ताला ने जो वादा वईद फरमाया है उसके खिलाफ पर कादिर है, यानी अलग से भी बात कर रहे हैं। ये दो बातें इसमें हम शामिल हैं। तो वादा वईद के बारे में वो अलग चीज है, जो वादा किया है उसके खिलाफ भी किसी को जन्नत में, जिसे आप कह रहे हैं किसी को जन्नत में डालना चाहे तो जन्नत में डाल दे, वो तो अल्लाह की मर्जी के ऊपर है। जिसको जहन्नम में डालना चाहे तो जहन्नम में डाल दे। मुसलमानों को गुनाहगार रहेगा तो मुसलमानों के लिए ही जन्नत है, लेकिन अगर गुनाहगार रहेगा तो उसको जहन्नम में भी डालेगा, उसका अजाब उसकी मर्जी है, या माफ कर दे, है ना। वादा के खिलाफ भी नहीं करता वो, लेकिन इसमें तूल बहस है। बस मैं आपको शॉर्टकट में ये बताना चाह रहा हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ झूठ निस्बत करना बहुत बड़ी ऐब है। हमारा ईमान हमारे साथ, आपकी ईमान आपके साथ होगा, कोई मौलवी काम नहीं देगा। गलत को गलत के साथ देंगे तो आप भी पकड़े जाएंगे, ठीक है। देखिएगा अजहर अली देवबंदी साहब, ठीक, देखिए मेरी बात को अगर आप सुनेंगे, मेरी बात को भी समझेंगे ना तो बात भी बचेगी। जी,
آپ کی بات جو ہے آپ سے جو ہے آپ کی کچھ باتیں ہیں جن سے میں متفق ہوں، لیکن بعض باتیں جو ہے اس سے میں متفق نہیں ہوں۔ جی جی متفق ہیں. کچھ باتوں سے میں متفق ہوں، کچھ باتوں سے میں متفق ہوں، انشاءاللہ آگے میں اس کی وضاحت کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، وضاحت کیجیے، آپ میں بولیں. صرف جو ہے میں صرف یہی بولنا چاہ رہا ہوں کہ مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی اس فتوے کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ خلاف وعدہ جو ہے کرنے پر اللہ قادر ہے، اور اسی کی تفصیل میں جو ہے ڈپلومیٹک کے الفاظ داخل کیے ہوئے عبارت میں۔ دیکھیے اس کو خلاف وعدہ نہیں کہتے ہیں، سمجھے؟ آپ جو کر رہے ہیں وعدہ کے خلاف بھی کر سکتا ہے اللہ رب العزت، وہ بھی غلط ہے، وعدہ کے خلاف نہیں کرے گا وہ۔ دیکھیے جو اس مسلمان کو دیں گے جنت کہا ہے اللہ رب العزت، ٹھیک، لیکن گنہگار ہے، وہ سیاہ کار بدعمالیاں ہیں، اس کو جہنم میں ڈالے گا، پھر اس کو جنت دے گا ہی وہ اللہ رب العزت۔ اس کا وعدہ بھی نہیں تبدیل ہوتا، اس کا کلام بھی تبدیل نہیں ہوتا۔ میں یہ بھی بول رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی وہی ہے کہ وہ صالحین کو جنت دے گا۔ جی اللہ کی وہی ہے نا کہ وہ صالحین کو جنت دے گا، انبیاء کو جنت دے گا۔ جی جی بالکل، مسلمانوں کے لیے ہی اعلان کیا ہے۔ وہی بھی یعنی اللہ کا کلام ہی ہے۔ ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ آگے دیکھیے گا، آگے دیکھیے، آگے پھر آیت پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا، تو عذاب حریق کافروں کے لیے دردناک عذاب کا پیغام سنا ہے اللہ تبارک و تعالی، ہے نا؟ جی بالکل۔ اور مومنوں کے لیے تو بہت سارے آیت ہیں، مسلمانوں کے لیے جنت میں، لیکن نہیں بہت ہے مسئلہ یہ ہے، سنیے نا، اللہ نے یہ فرما دیا کہ وہ مؤمنین کو جنت دے گا اور مشرکین و کفار کو جہنم میں ڈھکیلے گا، ڈال دے گا، ٹھیک ہے، اور ان کے لیے دردناک عذاب جو ہے اللہ تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، اور اس جہنم کی ایندھن جو ہے یہ انسان پتھر۔ اب میں یہ بول رہا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وعید کر دی کہ وہ مؤمنین کو جنت میں ڈالے گا، تو پھر یہ کہہ رہا کہ اگر وہ مؤمنین و انبیاء و صالحین کو جہنم میں ڈالے پھر بھی وہ عادل لے گا، اس کا کیا معنی ہے؟ ایسے کوئی دلیل چاہیے نا مجھے، بغیر دلیل کے اپنے ذہن سے عقائد کے معاملے میں اپنے ذہن سے تعویلات کر کے بات نہیں کرنا، یہ عقائد کے معاملہ ہے، اور اس میں طول طوالت نہیں کریں گے۔ اگر اللہ تبارک و تعالی انبیاء کو، اگر معاذ اللہ آپ کے بقول اگر میں کہوں، اگر معاذ اللہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو 1000 بار توبہ، میں توبہ کرتا ہوں اس بات سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ جہنم میں اللہ تعالیٰ ڈال دے گا، جہنمی بنا دے گا، اس کی قدرت میں نہیں، ایسی بات نہیں کرنا بغیر حوالہ کے، یہ عقائد کے معاملے ہیں، زبان سنبھال کے بات کریں گے۔ آپ نے اس بات کو برا سمجھا، آپ نے اس بات کو برا سمجھا جو میں نے نہیں، بغیر حوالہ کے، بغیر دلیل کے، قرآن کی آیت نہیں ہے، قرآن حدیث نہیں ہے، اس میں اس طرح اتنی بڑی باتیں کرنا انبیاء اولیاء کے لیے اچھی بات نہیں ہے۔ یہ بری بات ہے نا، آپ نے تو اس کو برا سمجھا نا۔ جی جی یہ بری بات ہے۔ ابھی ایک سیکنڈ میں حوالہ پڑھتا ہوں، حوالے کے اندر عبارت بھی ہے، آپ ان شاء اللہ 1 منٹ سے فیصلہ رکھتے ہیں۔ جی جی 1 منٹ میں آپ کو پورے حوالہ بھی دے دیتا ہوں، اور ہے نا آپ حوالہ ڈھونڈیے۔ دیکھیے آپ اور یہی معاملہ ہے، شیخ الہند محمود الحسن صاحب بھی لکھتے ہیں۔ میں جو ہے مولانا محمد عبدالاحد قادری ان کا ترجمہ ہے، غوث یزدانی، ترجمہ الفتح الربانی، شیخ عبد القادر جیلانی، ٹھیک ہے، اس کا صفحہ نمبر 552 ہے، 553، ٹھیک ہے۔ اب جس عبارت کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ بالکل غلط ہے، تو اس میں لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ فرضاً کسی پیغمبر اور صالحین میں سے کسی کو دوزخ میں داخل کر دے تو تب بھی وہ عادل رہے گا، اور یہ محبت بالغہ ہوگی۔ ہم پر تو یہی واجب ہے کہ ہم کہیں کہ معاملہ و حکم سچا ہے اور ہم چو و چرا نہ کریں۔ جی
ऐसा हो सकता है और मुमकिन है, ठीक है, यहाँ पे इम्कान बताया जा रहा है। और अगर होगा हक बेजानिब होगा जी और सरापा इंसाफ होगा। अलबत्ता ये ऐसी बात है कि रुकू में ना आएगी और ना वो इसमें से कोई बात करेगा, ठीक है। ये इबारत है शेख अब्दुल कादिर जिलानी पीराने पीर। जी उसमें कोई शक नहीं है। और इसके मुतरजिम जो है मौलाना अब्दुल अहद साहब कादरी, जो खुद बरेलवी है। जी तो देखिए जी एक मिनट मेरी बात हो जाए। और इसके अंदर जो है ना इस बात की वजाहत हो गई कि उन्होंने बकौल आपके कि ये इबारत दुरुस्त नहीं है, और इससे आपने इस्तग़फ़ार भी पढ़ा कि अंबिया व सालिहीन को और पैगम्बरों को दोज़ख में डालने वाली बात कहना बिल्कुल दुरुस्त नहीं है जब तक कि कुरान हदीस इससे ना मिल जाए। हालांकि शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह का अक़ीदा। जी वो तो सबका अक़ीदा यही होने चाहिए। यही बात वही बात नहीं, वो आसमान जमीन का फर्क है। देखिए उसमें क्या है, अदल और इंसाफ की बात है, समझे। अल्लाह तबारक व तआला, देखिए जिस पर अल्लाह रब्बुल इज्जत अदल इंसाफ की बात है, अगर किसी को डाल दे, ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन अगर डाल दे तो उसका अदल होगा, उसकी बात की है वहाँ पर। तो अदल पर ईमान लाना हमारी जरूरी है। तो वहाँ पे सिर्फ ये नहीं कि वो अदल इंसाफ होगा, वहाँ पे लिखा है कि अल्लाह की कुदरत में ये मुमकिन है। नहीं, ये इबारत के अल्फाज है, इबारत में वो मुमकिन है, वो हो सकता है, वैसा करके लिखे है ना। हाँ, तो वो अदल की बात है, उसके अदल आप खुद इबारत पढ़े हो, अदल की इबारत में और इसमें क्या फर्क है? नहीं उसमें जमीन आसमान के फर्क है। इसमें कहे हैं, देखिए वहाँ पर भी ये बात है कि नहीं, देखिए जरा अंबिया औलिया को लेकिन करेगा नहीं, यहाँ पे भी लिखा है सुनिए नहीं, वो बात नहीं है, मुमकिन है। अदर अली साहब, वो आप गलत समझ रहे हैं, देखिए गलत समझ रहे हैं। अदल की बात है और उसकी इंसाफ की बात है। जिसको चाहे जहन्नम में जाए डाले, जिसको चाहे जन्नत में डाले, उसकी अदल है, इंसाफ है, उसकी मर्जी। जर्रा बराबर भी खिलाफ नहीं करेगा वो। और देखिएगा आप, अल्लाह रब्बुल इज्जत रत्ती बराबर बेइंसाफी भी नहीं करेगा। ये ईमान की बात है। आप इस पर चश्मा करने की झूठ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ आप लोग निस्बत करके अकीदा रखते हैं, ये गलत है और खारजी अकीदा है। मुमकिन मानने वाले को कहा है ये? मौलाना मैंने आपसे पूछा कि दोनों में फर्क मुझे बता दे। उसमें तो अदल की बात है ना, फर्क है, उसमें झूठ की बात ही नहीं है। अच्छा झूठ की बात है उसमें। इस इबारत में लिखा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला की कुदरत में दाखिल है। हाँ, वो तो उसका इंसाफ अदल है। सुनिए ना, मुमकिनात में से लिखा हुआ है कि वो खुल्फे वईद यानी वो कर सकता है। खुल्फे वईद नहीं दिखा सकते, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं अपनी तरफ से? मैं कहाँ झूठ बोल रहा हूँ? उसमें है ही नहीं वो बातें। अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए मुमकिन है, हो सकता है, उसके अदल में है, इंसाफ में है, करना चाहे कर सकता है। मैं आप झूठ का इल्जाम मत लगाओ। खुल्फे वईद लिखे हैं उसमें। हम क्यों चरा न करे, ऐसा हो सकता है और मुमकिन है। हाँ, उसमें खुल्फे वईद लिखा है इबारत में। ये क्या है? ये मुमकिन होना खुल्फे वईद नहीं है। मुमकिन है, वो आदल इंसाफ उसकी है, मुमकिन हो सकता है, उसके इंसाफ उसके वो ज्यादा जानने वाला है। अरे अदल इंसाफ तो जब ऊपर होगा जब की बात है आगे की, लेकिन ये पहले लिखा हुआ कि ऐसा करना जो है अल्लाह की कुदरत में, और ये मुमकिन है। मुमकिन है, वो मर्जी है, वो अल्लाह की मर्जी है, करना चाहे कर सकता है। नहीं, मुमकिन का क्या मतलब? अल्लाह की कुदरत में है या नहीं? मुमकिन का मतलब आप समझ रहे हैं कि वादा के खिलाफ कर रहा है वो। अस्तगफिरुल्लाह। पैगंबरों के लिए वादा है, आपने खुद आयत पढ़ी ना हज़रत। तमाम मोमिनों के लिए वादा है, जन्नत है, और सजा जहन्नम में डाल करके उसको जन्नत देगा ही देगा। हम लोगों का अकीदा यही होनी चाहिए। मैं आपकी बात इस्लाम से सुनता, आप भी मेरी बात इस्लाम से। आपने खुद आयत पढ़ी मोमिन के लिए जन्नत है, और फिर मैंने इसके ऊपर आपके सामने पेश किया कि वहाँ पे वही जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की, और इस किताब के अंदर जिसके मुतरजिम जो है तो बरेलवी, इस किताब के अंदर अंबिया औलिया को हमेशा जहन्नम में डालने की बात कर रहे हैं। अल्लाह ताला की कुदरत में इम्कान है, मुमकिन है, और यही बात उसके अदल इंसाफ है जनाब।
अब्दुल अहद कादरी साहब लिखे तो ये काफिर हो गए, मुसलमान हो गए अजीब की बात। चलो खैर मौलाना देखिए अभी 15-20 मिनट था मेरे पास, 20 मिनट हो गया, इंशाल्लाह अभी दोपहर में कुछ देखिएगा जनाब, एक मिनट जो कह रहे हैं, 1 मिनट कह रहे हैं, साजिद खान देवबंदी झूठ की ताबीर की, झूठ या किज़्ब क्या है? किज़्ब बोलते हैं खिलाफे वाक़े को, वाक़या के खिलाफ को, यानी दिफाए अहले सुन्नत वल जमात सफ़ा नंबर 297 में लिखा। इसी किताब में झूठ की पूरे बात सुन लीजिए। आप मेरी बात सुन तो लीजिए। अभी मैं पहुंच गया हूँ और मुझे चाबी देंगे दुकान की। एक मिनट सुन लीजिए, ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, सिर्फ इसको सुन लीजिए। मैं पढ़ लिया हूँ, यहाँ से सुनिए ना, यहीं से अपन कंटिन्यू करेंगे। आप इबारत पढ़ के चले जाएंगे फिर मुझे जवाब देने टाइम नहीं रहेगा। नहीं, मैं और भी बात करूंगा इसके मुतालिक, आपसे बात करूंगा। 1 मिनट मेरे वक्त में आप अभी सुन लेते तो बेहतर रहता आपके लिए। 1 मिनट मेरी बात। हाँ, 1 मिनट में खत्म कर दे रहा हूँ। 1 मिनट नहीं, मैं सिर्फ 10 सेकंड आपको बोल रहा हूँ। आप अपनी बात को, मैं कॉल जब रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो आप अपनी बात को रखिएगा, मैं इसका जवाब दे दूंगा, ठीक है? यही से बात को शुरू करेंगे इंशाल्लाह। और हमारी नियत जो इस्लाह की है, ठीक है, बस इस्लाह की बस मैं नहीं चाहता हूँ कि आपकी तजलील करूँ ताकि लोग सुने और आवाम इसके इंसाफ से नजर रखे। मैंने आपको बताया, सुनिए 1 मिनट मौलाना सुनते ही, मेरी नियत सिर्फ यही है कि मैं आपको हमारे जो उलमा है उनकी इबारतों का सही माना मफहूम बताऊं। मैं तो इबारत जो उर्दू में लिखी रहती है उसको वाज़ेह तौर पर पढ़ के निशानदेही करके आपको बताता हूँ मैं। ठीक है, मैं आपको इबारत भेज दूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, सैफ़ यमानी का कौल के मुताबिक ये मुअतज़िला अकीदा बताए हैं और उसी को अकायद आप बता रहे हैं। ठीक है, वही अकीदा जो है इमाम शेख अब्दुल कादिर जिलानी किताब से मैंने लिखा है। वो झूठ की निस्बत नहीं है उसमें, जो किताब का नाम बताया है वो तो आप खुद, आपको आप खुद देख लो एक मरतबा उसको। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, फिर बात करेंगे रात में, है ना? चलिए ठीक है। ठीक है।